Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Alpha Classes Handwara. I am presenting this lecture through my YouTube channel, that is Chemistry with Mubashir Sir, which is the best platform for free education. Today's lecture will be for class 11th. As you know, that yesterday we discussed about Berzelius hypothesis, and we concluded that Berzelius, who was a Swedish chemist, he tries to correlate Gay-Lussac's law with Dalton's atomic theory. And according to his hypothesis, he said that when we fill equal volumes of gases in different containers, keeping pressure, temperature, and other physical quantities constant, these gases must contain equal number of atoms, which means that he made a relationship between volume of gas and number of atoms, which means that if you have two containers of 100% equal capacity, they will contain equal number of atoms, keeping the physical conditions constant, which we have discussed in yesterday's lecture. And then we simply try to learn how this Berzelius hypothesis worked when he tried to correlate his hypothesis on a chemical reaction, and the conclusion of the reaction was found that according to its hypothesis, atom can take part in a chemical reactions in fractions. We can say when atoms undergo any chemical reaction, they undergo chemical reactions, and they take part in divisions. An atom can be divisible. Atom can combine in a divisible form, which which according to Dalton's atomic theory was totally wrong. So according to Berzelius hypothesis, atom can take part in a chemical reactions in fractions. As we saw in yesterday's experiment, that according to Berzelius, half atom of hydrogen can combine with half atom of chlorine to form one molecule or one compound atom of HCl, and which was totally wrong, which was in contradiction with Dalton's atomic theory. So in order to overcome these limitation, so in order to overcome the limitations, or in order to overcome the fact that a fraction of atom can take part in a chemical reaction, another chemist, namely Avogadro, and he propounded his hypothesis related to Berzelius hypothesis. कहने का मतलब यह है कि बर्जिलिस ने कल जो अपनी हाइपोथेसिस जो हमने कल डिस्कस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास इक्वल कैपेसिटी के कंटेनर्स में अगर आप डिफरेंट गैसेस फिल करोगे डिफरेंट कंटेनर्स में, कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, तो वी कैन से दैट उनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे. लेकिन जब वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखी गई, तो ये देखा गया कि एक्चुअली बर्जिल्स का कहना था कि एटम फ्रैक्शंस में भी क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है. जैसे हमने कल देखा था कि हाफ एटम हाइड्रोजन का हाफ एटम क्लोरीन के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड एटम बना सकता है. लेकिन डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट ये था कि एटम जब भी कंबाइन होता है, इट कंबाइंस एज ए होल. एटम कैन नेवर बी कंबाइंड इन ए फ्रैक्शन फॉर्म. तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए या इसी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करने के लिए आए थे एवोगाड्रो, जो कि हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, आवर टुडेज टॉपिक विल बी एवोगाड्रोज लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एवोगाड्रो लॉ था या जो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस थी, ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या था. उसका रीज़न ये था कि वो लॉ दिया गया था ताकि जो बर्जिलिस की बात कही गई थी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, यानी देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ एटम्स, उस बात को, वो बात गलत साबित हुई थी अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो उस चीज़ को क्या कहते हैं कि मॉडिफाई करने के लिए, रिवाइव करने के लिए एवोगाड्रोस लॉ आया था. ठीक है, तो एवोगाड्रोस लॉ में क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड बर्जिलिस हाइपोथेसिस. यानी जो एक कन्फ्लिक्ट
पैदा हुई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और बर्जिलस हाइपोथेसिस के दरमियान, क्योंकि बर्जिलस का कहना था कि एटम फ्रैक्शंस में कंबाइन कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम जब भी कंबाइन करता है वो एज होल टेक पार्ट करता है, इट नेवर टेक्स पार्ट इन डिविजिबल फॉर्म। ठीक है, तो आगे एवोगैड्रो सजेस्ट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल। सबसे जो पहली बात एवोगैड्रो ने की, उन्होंने कहा कि आई विल मेक पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ एटम इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल। यानी उन्होंने पहले सबसे पहली बात बिफोर गिविंग हिज हाइपोथेसिस उन्होंने कहा कि एक्चुअली शायद उस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल, क्या डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस उन्होंने एटम को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या कहा, एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक बात कही, अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हमारा एटम होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का, एन एलिमेंट जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, अल्टीमेट पार्टिकल का बना है उसका नाम एटम है। लेकिन ये एटम जो है इसकी खास बात क्या है, इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो उन्होंने कहा कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं सोडियम की। वी नो दैट सोडियम जो है, अगर हम सोडियम की बात करें या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पोटेशियम की, ठीक है, या अगर हम बात करेंगे गोल्ड की, ठीक है, हमने तीन यहाँ पे मेटल्स लिए, तीन एलिमेंट्स लिए। अब आप मुझे बताओ जो सोडियम का जो एलिमेंट है उसमें जो सोडियम के एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ सोडियम का एक एटम हो गया, सोडियम का दूसरा एटम हो गया, सोडियम का तीसरा एटम हो गया। सिमिलरली पोटेशियम का जो एलिमेंट होगा उसमें जो एटम्स होंगे पोटेशियम के एटम्स होंगे। गोल्ड का जो एलिमेंट है उसमें किसके एटम्स होंगे, गोल्ड के ही एटम्स होंगे। तो कहने की बात यह है कि एटम जो होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। हम बोलते हैं सोडियम का एक एटम, पोटेशियम का एक एटम, गोल्ड का एक एटम। यानी यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए इनमें जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी वो इंडिविजुअल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलेंगे इफ आई अगर मैं आपको यहाँ पे नाउ मैं आपको बोलता हूं जैसे H2 हमारे पास होता है, हमारे पास H2 होता है, या हमारे पास O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। जरा आप मुझे बताओ हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उसमें कितने होते हैं, उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इस तरह से जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। कहने का मतलब होता है कि इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी सोडियम की, पोटेशियम की या गोल्ड की, उनमें जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअली फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की, हमने जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की, या अगर हम बात करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो आप देखोगे वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पे जो एटम्स होते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो एटम होगा वो मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा दूसरे क्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो इंडिविजुअल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बनाता है। इस तरह से हाइड्रोजन की बात की तो यहाँ पे हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बनाता है। कहने की बात यह है कि सोडियम में भी एटम्स थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम में जो एटम था वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, वो फ्रीली एग्जिस्ट होता है, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वो स्टेबल फॉर्म में रह सकता है मोनो एटॉमिक स्टेट में। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एटम है, वेदर वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम और क्लोरीन एटम, वो कभी मोनो एटॉमिक स्टेट में स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा यहाँ पे देखेंगे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही मतलब होता है कि एटम जो है मे और मे नॉट, यहाँ पे मे है, यहाँ पे मे नॉट है। इसका मतलब एटम मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी एटम कहीं कहीं एलिमेंट्स में क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है। ये कहा था किसने, ये कहा था एवोगैड्रो ने। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर हाइपोथेसिस, तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम जो होता है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कर किन में सकता है, सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया हमारा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। और किन में ये
इंडिपेंडेंट या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, इनमें जो एटम्स होता है वो डायटोमिक स्टेट में मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको पहली बात समझ आई होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल के बारे में उन्होंने क्या कहा, मॉलिक्यूल के बारे में उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो वी नो दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जिन्होंने आपस में क्या बनाया होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल, इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, दो क्लोरीन एटम्स ने कोवलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक सब्सटेंस का। सब्सटेंस क्या हो सकता है, इट मे बी एन एलिमेंट और इट मे बी अ कंपाउंड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का या एक कंपाउंड का, जो हमेशा इंडिपेंडेंटली, जो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करता है। देखो हमें पता है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन होते हैं, दो। तो क्लोरीन में जो दो क्लोरीन एटम्स होते हैं वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं और वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी और एटम की जरूरत नहीं होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबल फॉर्म में होता है, इनको किसी और एटम की, इनको किसी और एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी हम देखेंगे कि देयर आर टू ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, देयर आर टू ऑक्सीजन एटम्स। लाइकवाइज दिस इज आवर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इसमें हमारे दो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ठीक है, जो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है, एक्चुअली अगर हम कंक्लूजन देखेंगे ना, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कंक्लूजन क्या था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का, उन्होंने बर्ज़िलस हाइपोथेसिस को किस तरह से टेक ओवर किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम जो है ये कहीं कहीं पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हेयरएज मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, इनके कहने का मतलब था, इन्होंने ज्यादा जोर दिया था मॉलिक्यूल पे न कि एटम पे। उन्होंने कहा था कि एटम जो है ये कहीं पे एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट, लेकिन कहीं पे तो नहीं करता है। ठीक है, व्हेयरएज मॉलिक्यूल, इससे बेहतर उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो मॉलिक्यूल है, जो भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये खुद भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसमें हमें क्या है कि ये हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये हिंट मिला होगा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। बर्ज़िलस ने वॉल्यूम को रिलेट किया था नंबर ऑफ एटम्स के साथ, लेकिन जो एवोगैड्रो है इन्होंने ये वॉल्यूम को रिलेट करना चाह रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। ये कहना चाह रहे थे कि बर्ज़िलस ने जो बात कही है कि वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम जो होता है उनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एक्चुअली एटम जो है, एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस, क्योंकि उनको ये कहना था कि गैस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होगा वो हमेशा क्या करना चाहिए, वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए, जो खासियत किस में पाई गई थी, मॉलिक्यूल में। तो आप देखिए कि कंक्लूजन क्या निकला। पहली कंक्लूजन क्या निकली एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैसेस which can have independent existence are molecules and not atoms। तो इन्होंने जो डिस्टिंग्विशन किया था बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये गैस है, हाइड्रोजन गैस ले लो, क्लोरीन गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, जो भी गैस आप ले रहे हो, उनमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक्चुअली वो गैस है, एक्चुअली वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी गैस का अगर आप ले रहे हो जिसका आप चाह रहे हो कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, वो एटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। पहली कंक्लूजन क्या निकली कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी गैस का होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, वो एक्चुअली मॉलिक्यूल है, न कि एटम है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। दूसरा जो कंक्लूजन उन्होंने यहाँ पे निकाला वो क्या था, दैट वाज सिंपली कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड बी रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है उसकी रिलेशन किसके साथ होनी चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, न कि नंबर ऑफ एटम्स के साथ। क्योंकि एटम जो है ये हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, व्हेयरएज मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका कोई भी गैस बना होगा, जो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हर जगह करेगा, वो मॉलिक्यूल है, न कि एटम। दैट मीन्स उनके इस हाइपोथेसिस से लास्ट पे जो कंक्लूजन निकलता है, दैट इज एक्चुअली जो वॉल्यूम है उसका रिलेशन जो है वो किसके साथ है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, यानी जो बात बर्जीलियस ने की थी उन्होंने उसी बात को कायम रखा, लेकिन लास्ट पे जो उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इन्होंने उस थ्योरी को मॉडिफाई करके, उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके बोला कि वॉल्यूम जो होता है, इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, न कि एटम्स। ठीक है, तो अगर आप इनका जो हाइपोथेसिस है, इनका जो स्टेटमेंट है, अगर आप उसको रीड आउट करोगे ना, आपको वो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट 90% सेम लगेगा। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी फिजिकल कंडीशंस को सेम रखते हुए, जो कल भी हमने कहा था, प्रेशर और टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हुए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, अगर आप जितनी भी गैसेस आप ले रहे हो, डिफरेंट गैसेस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, अगर आप उनके इक्वल वॉल्यूम्स ले रहे हो, दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप रिवाइज करोगे ना, तो कल के हाइपोथेसिस, बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में सिर्फ एक जगह डिफरेंस पाएगी, दैट इज वहां पे नंबर ऑफ एटम्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर आपसे कोई पूछेगा, आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्जीलियस हाइपोथेसिस एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे बर्जीलियस ने फोकस किया था, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी कि अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम्स के गैसेस है तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, वायरएज एवोगैड्रो ने एटम को प्रेफर नहीं किया था, उन्होंने लिमिटेशन निकाली थी एटम की, कि एटम कभी कभी फ्रीली, कहीं कहीं पे फ्रीली एग्जिस्ट होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इससे बेहतर हम अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट स्पीशी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, वी कैन से दैट अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस है और उनका वॉल्यूम इक्वल है, अगर आपने फिजिकल कंडीशन सेम रखी है, तो उन सारे गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन रीड आउट करोगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, दैट इज according to Berzelius, equal volume of gases contain equal number of atoms, whereas Avogadro's hypothesis, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर इसको हम दिखाना चाहे, रिप्रेजेंट करना चाहे, तो वी विल राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहां पे व्हाट इज V इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है गैस के, और अगर वो वॉल्यूम उन गैसेस का सेम है, तो उनमें जो N, व्हाट इज N हियर? N इज नॉट हियर नंबर ऑफ एटम्स, N इज हियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का बेसिक इसका आइडिया समझ आया होगा कि इन्होंने किस पे फोकस किया था। इन्होंने मॉलिक्यूल्स पे फोकस किया था। इन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूल जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस जिसकी फ्रीली एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे 3 सिलेंडर्स लिए हैं। ठीक है, सिलेंडर फर्स्ट, सिलेंडर सेकंड, सिलेंडर थर्ड। ठीक है, हमने इनमें याद रखना है, लेकिन 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो है, दैट इज यू हैव टू कीप फिजिकल कंडीशंस, यू हैव टू कीप फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। एक बात तो वो करनी है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है? नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि इनकी जो कैपेसिटी होगी, इन तीनों वेसल्स की जो कैपेसिटी होगी, दैट शुड बी 100% सेम। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है, हमने पहली जो वेसल ली है, उसमें आप मुझे बताओ गैस कितना फिल किया है? 1 लीटर। किसका हमने लिया? हाइड्रोजन गैस का। एट एनटीपी, व्हाट इज एनटीपी? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, आप जरा दूसरी वेसल पे देखो, वहां पे हमने कौन सी गैस फिल की है? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। गैस तो डिफरेंट रखे हैं, लेकिन इसमें कितनी गैस फिल की है? 1 लीटर, यानी इसकी कैपेसिटी भी सेम है एट एनटीपी। थर्ड जो हमने वेसल ली है, उसमें हमने कौन सी गैस फिल की है? क्लोरीन गैस फिल की है। कितनी कैपेसिटी की? 1 लीटर की एट एनटीपी। तो आप मुझे बोलो, क्या हमने दोनों कंडीशंस फिल की है? आप बोलोगे जी सर, हमने दोनों कंडीशंस फिल की है। हमने फिजिकल कंडीशंस को भी सेम रखा है, हमने तीनों गैसेस को 3 सेम कैपेसिटी वाले वेसल्स में रखा है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। ठीक है, अगर आप हाइपोथेटिकली सोचो, ठीक है, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए रखा है, जरा आप देखो, जो आपकी पहली वेसल है, ये वाली, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आप जरा काउंट करो, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 9 है। ठीक है, अच्छा, जरा हम सेकंड वेसल पे जाते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स है? 9 ही है। ज़रा हम थर्ड जो हमारी वेसल है, इसमें मॉलिक्यूल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर आपके पास 3 वेसल्स है और 3 वेसल्स की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, वो बराबर है। अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, देखो अगर आप देखोगे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 9 थे, इसका मतलब इक्वल वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ आ रही है? बर्जीलस ने कहा था इक्वल वॉल्यूम होगा तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, लेकिन उन्होंने एटम्स को रिप्लेस करके बोला कि नहीं, एक्चुअली इट इज द मॉलिक्यूल विच इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस। और उन्होंने फिर इसको इस एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट वेसल्स में, डिफरेंट कंटेनर्स में, जिनकी कैपेसिटी, जिनका वॉल्यूम इक्वल है, कीपिंग फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, वी कैन से दैट दीज गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे हमने कल भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी, इसी तरह से इन्होंने क्या किया, जो हमारे एवोगाड्रो साहब थे, उन्होंने अपनी इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की थी। जैसे हमने कल देखा था फॉर्मेशन ऑफ HCl, वैसे ही आज भी हम देखेंगे कि क्या ये जो हाइपोथेसिस है, क्या ये वैलिड है जब भी केमिकल रिएक्शंस पे इसकी रिसर्च की गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन की रिएक्शन की क्लोरीन के साथ एंड वी गॉट हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जैसे H2 गैस है, इट कंबाइंस विद Cl2 गैस एंड इट विल फॉर्म HCl गैस। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि याद रखना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी कहा कि गेलुजैक्स लॉ जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो पहले वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जैसे हमने इसको बैलेंस किया, आपको बैलेंसिंग आती होगी। ठीक है, तो इसके बाद गेलुजैक्स लॉ अप्लाई हुआ। जब गेलुजैक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है तो आप खुद देखेंगे कि गेलुजैक्स लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे मैंने आपको कल भी कहा था ना, स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टैक्योमेट्रिक और स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो जब भी गेलुजैक्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम गैसेस जब भी रिएक्ट करते हैं वो वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, और HCl का कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू गेलुजैक्स लॉ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एवोगाड्रो साहब ने अपनी हाइपोथेसिस क्या की, अप्लाई की, और उन्होंने ये एज्यूम किया कि हम मानते हैं कि अगर एक वॉल्यूम है गैस का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं। कल जो हमने बर्जीलस हाइपोथेसिस पढ़ी थी, वहां पे उन्होंने एज्यूम किया था 1 वॉल्यूम में n एटम्स हैं, क्योंकि वो एटम की बात कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्राइटेरिया तो सेम रखा, उन्होंने स्पीशी चेंज की। उन्होंने कहा कि एक वॉल्यूम हम मान के चलते हैं, उसमें n मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ज़रा इसको फिर से हम आगे, तो हमने यहाँ पर जैसे ही एज सच हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम और HCl के 2 वॉल्यूम है, ये तो गेलुजैक्स लॉ है। अब आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, n मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक वॉल्यूम है मतलब n मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी एक वॉल्यूम है मतलब n मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है। अगर एक वॉल्यूम n मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है तो 2 वॉल्यूम्स किसके बराबर होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स के बराबर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फिर नेक्स्ट क्या किया, इन्होंने इस पूरी ये जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, इसको डिवाइड किया बाई 2n। इसको डिवाइड किया बाय 2n। इन्होंने डिवाइड क्यों किया बाय 2n, देखो जब भी कोई रिजल्ट निकालना होता है ना, हम रिजल्ट निकालते हैं एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, जो भी कंपाउंड एटम होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा, वी विल कंक्लूड आवर रिजल्ट्स ऑन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको 2n से डिवाइड किया। देखो 2n के डिवाइड करने से क्या होगा, जैसे ही इन्होंने 2n डिवाइड किया तो यहाँ से n और n कट जाएगा, वी विल गेट 1/2 ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ से n और n कट जाएगा, वी विल गेट 1/2 ऑफ मॉलिक्यूल, ताकि यहाँ से 2n और 2n, क्योंकि ऊपर 2n है ना, इस 2n को हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च करनी थी, हमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर अपना रिजल्ट चाहिए था, इसलिए उन्होंने सारी इक्वेशन को 2n से डिवाइड किया। तो 2n और 2n कैंसिल हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 2n और n और n कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिला क्या यहाँ पे, 1/2 मॉलिक्यूल, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वी गेट हाइड्रोजन, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, क्योंकि हमें एक मॉलिक्यूल ही निकालना था ना। तो आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकला, अगर आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करोगे ना बर्जीलस हाइपोथेसिस के साथ, उन्होंने कहा था हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाफ एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 कंपाउंड एटम ऑफ HCl। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाफ एटम था, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूँगा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या बोलूँगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ज़रा आप मुझे बताओ इन 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, सबका आंसर होगा 2।
यानी एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? दो। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स है तो हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? तो आंसर सिंपल वन है। अगर अकिस मॉलिक्यूलस मंज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स छ ज, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि हाफ मॉलिक्यूल में कितने होंगे? वन। अच्छा, एक मॉलिक्यूल अगर आप क्लोरीन का ले रहे हो, उसमें कितने क्लोरीन एटम्स होंगे? दो। तो हाफ मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक। वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवोगाड्रो ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल HCl बना रहा है। तो इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल में कम से कम एक एटम तो होगा ना। कल तो हम बोल रहे थे, बर्जील साहब बोल रहे थे कि हाफ एटम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं। तो हाफ मॉलिक्यूल में कितना होगा? एक एटम। इसके कहने का मतलब है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब का मतलब है वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन का मतलब होता है वन एटम ऑफ क्लोरीन फॉर्म्स वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl कंटेन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, विच इज इन रिलेशन विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि एटम जब रिएक्ट करता है, जब कंबाइन करता है, वो एज अ होल कंबाइन करता है, वो फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से भी ये सक्सेसफुली प्रूव हो गया कि हाँ, हाफ मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन हाफ एटम रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। हाफ मॉलिक्यूल क्यों ले सकता है? क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, क्लोरीन का या ऑक्सीजन का, उसमें दो एटम्स होते हैं, तो हाफ मॉलिक्यूल में कम से कम एक एटम तो होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक एटम जो होगा हाइड्रोजन का, वो एक एटम क्लोरीन के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल HCl बनाता है। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ आ गई होगी कि एवोगाड्रोस लॉ जो है थियोरेटिकली भी ये एक्सेप्ट हुआ, थियोरेटिकली भी ये सक्सेसफुल रहा, और जब एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया गया तो बहुत क्या ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस पे ये वेरीफाइड हुआ, सक्सेसफुल हुआ। और ये जो एवोगाड्रोस लॉ था, इट वाज अप्लाइड टू वेरियस रिएक्शंस, एंड जो इसके रिजल्ट्स थे वो इन रिलेशन थे विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, आई होप कि आपने कंपेयर किया होगा बर्जिल्स हाइपोथेसिस को एवोगाड्रोस लॉ के साथ। ठीक है, दोनों की जो बात थी ना, दोनों की बात जो थी, दैट वाज ऑन they tried to correlate volume with number of atoms and volume with number of molecules। बस फर्क ये है कि एवोगाड्रो साहब ने सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो भी गैस है उसका जो अल्टीमेट पार्टिकल है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो क्या है? वो आपका मॉलिक्यूल है, न कि एटम है। ठीक है, फिर उन्होंने जो बर्जिलस हाइपोथेसिस थी, उसकी जो हाइपोथेसिस थी उसको थोड़ा सा एडवांस किया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया बाय सेइंग दैट when you have different gases of equal volume under normal conditions of temperature and pressure, they will contain equal number of molecules and not equal number of atoms। और जब उनकी वो हाइपोथेसिस वेरीफाई की गई, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करने की कोशिश की, एंड ही वाज सक्सीडेड इन दैट, और उन्होंने लास्ट पे ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ, इट इज द मॉलिक्यूल विच कैन टेक पार्ट इन फ्रैक्शंस, नॉट द एटम। Because according to Dalton's atomic theory, atoms cannot take part in divisible form. Atom as a whole combine in a chemical reaction, whereas according to this Avogadro's law, he concluded that in his chemical reaction, where he tried to correlate volume of gas with number of molecules, he found that in the formation of HCl, half molecule of hydrogen can combine with half molecule of chlorine to form one molecule of HCl। I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो आपको जो इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, आप नोट्स बनाए। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, खुदा हाफिज़।